ایران کے ساتھ معاہدہ ہوگا یا نہیں 48 گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے چل رہے ہیں، امید ہے آبنہ ہرمز کی صورتحال جلد معمول پر آ جائے گی۔ اگر ایران اب پیچھے ہٹتا ہے تو اسے انتہائی سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی وزیر خارجہ بھی بیک ڈور مذاکرات فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونے کا دعویٰ کر چکے۔ وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کے مطابق آبنہ ہرمز سے بحری جہازوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی۔ بلومبرگ کے مطابق ایران آبنہ ہرمز سے بارودی سرنگوں کی صفائی پر رضامند ہو گیا۔ یورپی بحری افواج کو محدود اجازت دینے پر غور۔ ادھر امریکہ نے ایران کے پاسداران انقلاب سے منسلک 3 اداروں پر عائد پابندیاں ختم کر دی۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے 3 ایئر لائن سمیت اہم اداروں پر عائد پابندیاں ختم کی گئیں۔ فیصلے سے واشنگٹن اور تہران کے درمیان مذاکراتی عمل میں مثبت پیش رفت متوقع ہے۔ آبنہ ہرمز کی بحالی کے لیے عمان کے ساتھ معاملات طے پا گئے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی تصدیق۔ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ عمان کے ساتھ بحری راستے کی جغرافیائی حدود پر اتفاق ہوا۔ بیرونی مداخلت نہ ہوئی تو مشترکہ اعلامیہ جلد جاری کر دیا جائے گا۔ معاہدے میں بحری جہازوں کے لیے محفوظ راستے کے تعین پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران اور عمان کی بات چیت میں صرف 1 یا 2 معاملات پر اتفاق باقی رہ چکا، جو پیچیدہ نوعیت کے نہیں۔ پاکستان اور ایران کا 2 طرفہ تجارت $10 ارب تک بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی وزیر صنعت کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعاون، تجارت اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مشترکہ بارڈر 24 گھنٹے کھلا رکھنے کے لیے سہولیات بڑھانے، بہتر لاجسٹکس سسٹم اور کسٹمز طریقہ کار میں ہم آہنگی لانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ امید ہے مسلسل کوششوں سے $10 ارب کی 2 طرفہ تجارت کا ہدف حاصل کیا جائے گا۔ ایرانی وزیر سید محمد عطابک کا پرتپاک استقبال اور شاندار میزبانی پر اظہار تشکر۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان اور ایران کا آزاد تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق۔ مشترکہ تجارتی کمیٹی کے 10ویں اجلاس کے متفقہ منٹس پر دستخط کر دیے گئے۔ دونوں ممالک کا 2 طرفہ تجارت کے فروغ کے لیے عملی اقدامات تیز کرنے کا فیصلہ۔ دونوں ممالک کا بزنس ٹو بزنس روابط کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ بارٹر ٹریڈ کے نظام کو وسعت دینے اور مؤثر بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ چیٹگی کوہگ سرحدی مارکیٹ کے افتتاح کا عمل تیز کیا جائے گا۔ مشترکہ سرحدی منڈیوں کے مؤثر انتظام کے لیے مشترکہ کمیٹیاں قائم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی اقدامات عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی قرار۔ مسجد الاقصی میں انتہا پسند اسرائیلیوں کی دراندازی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی عمان میں مقبوضہ بیت المقدس کے حوالے سے وزارت اجلاس سے خطاب۔ بولے مقبوضہ مشرقی بیت المقدس پر اسرائیل کی خود مختاری نہیں، غیر قانونی آباد کاری اور قبضے کی کوششوں کو مسترد کرتے ہیں۔ مقدس مقامات پر دھاوا بولنا ناقابل قبول ہے۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ غزہ میں انسانی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ عوام کو خوراک اور پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ 67 سے پہلے کی سرحدوں کے تحت فلسطین کی آزادی کے لیے عرب اور مسلم ممالک کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ مسلم اور عرب وزارت اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ مسجد اقصی میں اسرائیلی اقدامات کی شدید مذمت۔ مسجد کی تاریخی اور قانونی حیثیت تبدیل کرنے کی کوششیں مسترد کر دی گئیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی عمان میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان کے ساتھ بیٹھک۔ مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال پر بات چیت۔ تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کے ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان اور مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی کے ساتھ بھی ملاقاتیں۔ باہمی تعاون اور رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ وزیر خارجہ سے عراق، اردن، صومالیہ اور الجیریا کے وزرائے خارجہ بھی ملے۔ غزہ سمیت علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عالمی رہنماؤں نے امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔
पाकिस्तान और अमेरिका का इंसदाद दहशत गर्दी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान चौथे इंसदाद दहशत गर्दी मुज़ाकरात का मुश्तरका एलानिया जारी। खित्ते में दहशत गर्दी में मुलव्विस कलअदम TTP, BLA, दाइश, खुरासान, अलकायदा और उनसे वाबस्ता तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयां बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों के आज़म का यादा। दोनों ममालिक दहशत गर्दों के सहूलतकार नेटवर्क तोड़ने पर भी मुत्तफिक। वफूद के दरमियान सरहदी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात पर भी तबादला ख़याल। दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से जजिस तैनाती की समरी की मंजूरी में ताखीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर कल समाअत करेंगे। दरखास्त में सदा की गई कि सदर मुमलिकत को उनके सेक्रेटरी के जरिए जजिस की तैनाती की समरी की मंजूरी देने की हिदायत की जाए। मुश्किल मुआशी चैलेंजेस पर टीम वर्क से काबू पा लिया। अब पायदार मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात का अमल तेजी से जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि जायका को सुमेरा के साथ ताउन छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार के फरोग और बरामदात में इजाफे के लिए मुफीद साबित होगा। वज़ीर आज़म ने निजकारी कमीशन में जारी इदारा जाती इस्लाहात और तंजीम नौ का काम 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहा निजकारी कमीशन की अफरादी क़ुव्वत में मालियाती, कानूनी और IT माहिरीन शामिल किए जाएं। निजकारी अमल के लिए कामयाब रोड शोज इत्मीनान बख्श करार दिए। वज़ीर आज़म कल सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात होगी। भारतीय अफवाज के मुजालिम के खिलाफ कश्मीरी आज भी सीना से पर। 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी भारतीय इक़दामात मुस्तरद। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे को 7 साल बीत गए। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत का आर्टिकल 370 खत्म करके वादी को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया। भारतीय इक़दाम के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। कराची से कश्मीर और गवादर से गिलगित तक कश्मीरियों से इजहार यकजहती। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में रैलियां। पाकिस्तानी आवाम का कश्मीरियों से भरपूर मोहब्बत का इजहार। रैलियों में मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए नारे। इस्लामाबाद में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर वजारत खारजा से D चौक तक रैली निकाली गई। तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा कि कश्मीर के लिए 3 जंगें लड़ी, 10 जंगें भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा से गुजारिश है अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवाए। वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 का दिन तारीख का स्याह बाब है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुसल्लह अफवाज का कश्मीरी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ के खुसूसी पैगामात। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत की। भारतीय फौजी मुहासरे, इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिशों को तशवीशनाक करार दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय तर्ज अमल खित्ते के अमन के लिए खतरा है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर ISPR ने खुसूसी नग़मा आज़ादी के उन्वान से जारी कर दिया। वज़ीर आला की मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय अफवाज के मजालिम का नोटिस लेने की अपील। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पैगाम में कहा, भारत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों की शनाख्त पर हमला किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने यकतरफा भारतीय इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफवर्जी करार दिए। कहा कि सिंध के अवाम कश्मीरी भाई बहनों के साथ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी बोले, भारत जितने मर्जी मजालिम कर ले, कश्मीरी अवाम की आवाज़ को नहीं दबा सकता। उधर बलोचिस्तान असम्बली ने मकबूजा कश्मीर की आइनी हैसियत ख़त्म किए जाने के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। वज़ीर आला सरफराज बुगटी सूबाई वज़रा और पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ की जानिब से मुश्तरका तौर पर करारदाद पेश की। मतन में लिखा कि पाकिस्तान मकबूजा और जम्मू कश्मीर के मजलूम अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। कश्मीरियों की कानूनी और सिफारती मुआवनत के लिए जामे कौमी लाहे अमल तश्कील दिया जाए।
चारों गवर्नर्स का कश्मीरी बहन भाइयों से भरपूर यकजहती का इजहार। पेशावर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर रैली का इनेकाद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पूरी दुनिया में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। पाक अफवाज ने जैसे मार्का हक में फतह हासिल की, ऐसे ही एक दिन कश्मीर भी हमारा होगा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा कि एकतरफा भारतीय इक़दामात खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने कहा कि भारत का तौसी पसंदाना और जालिमाना चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। अमेरिकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात को मुस्बत करार दे दिया। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में जारी हैं। उम्मीद है अब हुर्मुज़ की सूरत हाल जल्द मामूल पर आ जाएगी। ईरानी एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का अगला मरहला भी शुरू होने की उम्मीद है। तेहरान कभी एटमी हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर धमकी दी कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान पर बड़ा हमला होगा। ईरान ने मुआहदे से इनहराफ किया या बहरी रास्ते बंद किए तो उसे तारीख के बदतरीन और इंतहाई सख्त हमले का सामना करना पड़ेगा। ईरान वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी नुमाइंदे जेमिसन ग्रीयर की तिजारती ताउन पर वर्चुअल मीटिंग। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुजवज़ा बाहमी तिजारती फ्रेमवर्क पर मुज़ाकरात में नुमायां पेशरफ्त, जल्द मुआहिदा मुकम्मल करने के आज़म का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि अमरीका के साथ मजबूत तिजारती और सरमायाकारी शराकतदारी पाकिस्तानी बरामदात में इजाफे और माशी इस्तेहकाम में मददगार होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास इस्लामाबाद में जारी और नए तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि माली खुद इन्हसारी के लिए देर पर रेवेन्यू मॉडल पर काम किया जाए। इस्लामाबाद में अवाम की सहूलत के लिए 2 नए अंडरपासेस बनेंगे। कश्मीर चौक और फैसल मस्जिद अंडरपास पर काम अगले माह शुरू होगा। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में इमरजेंसी सर्विसेज को फ़ाल इदारा बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करने की हिदायत कर दी। सिंध काबीना ने पीपल्स कम्युनिटी हेल्थ सर्विस कंपनी के बजट की मंजूरी दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 और 2025 में मुजवज़ा तरामीम भी मंजूर। मुजवज़ा तरामीम मंजूर के लिए सिंध असेंबली में पेश की जाएंगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए कानूनी निज़ाम मज़ीद मजबूत बना रही है। उधर सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। येलो लाइन BRT मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए तमाम रुकावटें बरवक्त दूर करने की हिदायत। मुतल्लिका इदारे ताख़ीर से बचने के लिए तमाम इक़दाम यकीनी बनाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जायका के सदर की मुलाकात। मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। पंजाब में तालीम, सेहत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने वाले प्रोजेक्ट में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज ने टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और इदारा जाती इस्लाहात के लिए जायका के ताउन का खैर मक़दम किया। उधर पंजाब में गंदम की नई सरकारी कीमत 3800 रुपए फी मन मुकर्रर। पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद गंदम की रिलीज प्राइस का नया रेट जारी। सूबे में गंदम की नई कीमतों का इतलाक फौरी होगा। विफाक की हुकूमत पंजाब को पास्को से गंदम की खरीदारी की फौरी हिदायत। पंजाब को गंदम से 3 लाख मेट्रिक टन फराहमी की मंजूरी दी गई। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने 21 हलकों में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LA-27 मुजफ्फराबाद 1 से नून लीग की नौरीन आरिफ कामयाब करार। LA-28 मुजफ्फराबाद 2 से पीपल्स पार्टी के सैयद बाजिल अली नकवी फातेह। इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन के 8 हलकों और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। मुस्लिम लीग नून ने 15 नशिस्तों पर कामयाबी के साथ मैदान मारा। पीपल्स पार्टी के हिस्से में 6 सीटें आईं। मजमूई तौर पर दोनों मराहिल के बाद नून लीग ने 24 और पीपल्स पार्टी ने 10 नशिस्तें हासिल कर ली।
صدر ٹرمپ کے لاس اینجلس کے قریب واقع گولف کلب کے باہر سے مسلح شخص گرفتار 38 سالہ جینین جان ڈائلے تصاویر اور ویڈیوز بنا رہا تھا. ملزم کی گاڑی سے پستول، گولیاں اور میگزین برآمد. ملزم کے گھر کی تلاشی کے دوران مزید اسلحہ، گولہ بارود، باڈی آرمر اور مشتبہ تحریری نوٹس ملے. پینٹاگون نے جوہری حکمت عملی پر نظر ثانی شروع کر دی. امریکی میڈیا کے مطابق نئی جوہری حکمت عملی میں چین اور روس پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. محدود جنگ کے لیے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کے استعمال پر بھی غور.